So hi guys, and we're back again with some few questions on topology. Okay, we are gonna discuss about these questions. So first of all देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है. So there are two types of sets are defined. Okay, tau 1 and tau 2 such that it contains G, which is a subset of R. G is finite, or R by R G is finite. ओके, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली R में से G हटा देना. ओके, दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस. ठीक है, R में से G को हटा देना. दिस इज ऑल्सो, ये अगर फाइनाइट है या फिर ये फाइनाइट है, दोनों दोनों केस चलेगा क्योंकि इधर और लिखा हुआ है. नेक्स्ट, इधर में और एक क्या हुआ है, दिया हुआ है G सबसेट ऑफ R. G इज काउंटेबल, और R ये वाला फिर से सेम वाला वे में लिखा हुआ है is countable. Okay, so इधर में क्या पूछ रहा है, neither tau 1 nor tau 2 is a topology on R. Tau 1 is a topology on R, but tau 2 is not. Tau 2 is a topology, but tau 1 is not. And both tau 1 and tau 2 are topologies. बेसिकली चेक कर लो भाई कि tau 1 और tau 2 टोपोलॉजी है या नहीं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग सॉल्व करेंगे. सो हर टाइम इसमें देखना क्या चाहिए. सपोज इन द केस ऑफ टाउ 1, पहले देख लेते हैं कि फाई एंड आर ये दोनों कंटेंट है या नहीं. दैट इज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू टाउ 1. सो फाई, फाई क्या है, फाई ऑब्वियसली फाइनाइट है, फाई इज फाइनाइट. सो फाई बिलोंग्स टू टाउ 1. एंड सेकेंडली इज आर. सो आर माइनस आर इज इक्वल्स टू फाई, एंड दिस phi matlab वही null set, basically to say null set. Okay, null set. So this gives us null set, and this is also a null set, and hence since it's a null set, it is countable and it is finite, and hence it belongs to tau 1. Okay, so ये दोनों तो belong कर रहा है. Now the main thing is it closed under addition? Okay, is it closed under addition? अच्छा, addition नहीं होगा, closed under union. Okay, इधर में हम लोग क्या चेक करेंगे, closed under arbitrary union. So टोपोलॉजी में ये चीज चेक करना पड़ता है कि मैं इधर में लिख दे रहा हूँ closed under arbitrary arbitrary union. Okay, ये हमें चेक करना पड़ता है. Is it closed under arbitrary union? So let us suppose I solve this by an example. Okay, let us suppose uh, these are all subsets like this which belong from n. Okay, so हम लोग set of natural numbers से एक एक नंबर ले रहे हैं, लेके we are forming this set. Okay, so ये क्या है, ये obviously finite हो रहा है. This is finite. Okay, now hence this belongs to tau 1. ये भी हो जाएगा, पर द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू टेक आर्बिट्ररी यूनियन. हम लोग जब आर्बिट्ररी यूनियन ले लेंगे इसका, सच दैट n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ऐसे अगर हम लोग आर्बिट्ररी यूनियन ले लेंगे, देन दिस इज इक्वल्स टू n. ओके, नेचुरल नंबर्स बन जा रहा है, राइट ये तो फुल नेचुरल नंबर सिस्टम बन गया. और नेचुरल नंबर सिस्टम क्या फाइनाइट होता है? नो, इट इज काउंटेबल सेट, बट इट इज नॉट फाइनाइट. ओके, इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट, or we can say countably infinite. That is the more correct one. Okay, countably infinite set, and hence this does not belong to tau 1. So this does not. मैं थोड़ा सा लेफ्ट में स्क्रॉल कर ले रहा हूँ. This does not belongs to tau 1, and hence we can say that this tau 1, let me write it in black, therefore star tau 1 is not closed, hence not a topology, not a topology. Okay, done with this one. Similarly हम लोग चेक करेंगे with an example for case 2. Okay, similarly हम लोग चेक करेंगे with an example of case 2. So in the case of tau 2, let us suppose that R belongs to
closed interval 0 1. Okay, R belongs to closed interval 0 1. Then हम लोग obviously बोल पाएंगे कि a singleton set R obviously belongs to tau 2 because it is countable. Okay, countable दो type का होता है, countably finite, countably infinite. So this is countable finite and hence it belongs to tau 2. No doubt with that. अगर now if we take फिर से क्या ये वाला प्रॉपर्टी मेन है इधर में क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन. ओके, सो अगर हम लोग फिर से इधर में भी चेक कर लेंगे तो यूनियन आर बिलोंग्स टू 0,1 सबके लिए यूनियन ऑफ आर, ये जो सेट बनेगा ये वी आर गेटिंग 0,1. इज दिस काउंटेबल? नो, नॉट काउंटेबल, या फिर बेटर टू से अनकाउंटेबल. ये क्या होगा? अनकाउंटेबल, राइट? एंड सिंस इट इज अनकाउंटेबल, सो हम लोग को क्या होना चाहिए था? ये टोपोलॉजी कैसा बनना चाहिए था? काउंटेबल बनना चाहिए था, बट इट इज अनकाउंटेबल, हेंस नॉट अ टोपोलॉजी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टोपोलॉजी. सो टाउ वन और टाउ टू दोनों बेकार है क्योंकि बोथ आर नॉट टोपोलॉजी. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Remember, neither tau 1 nor tau 2 is a topology. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. तो लेट x इक्वल्स टू r. हम लोग देख ले रहे हैं x इक्वल्स टू r कैसे जनरेट हो रहा है विथ टोपोलॉजी जनरेटेड. कैसे? इट्स टोपोलॉजी इज जनरेटेड बाय इंटरवल्स, इंटरवल्स लाइक दिस एंड इंटरवल्स लाइक दिस. ये दोनों टाइप के इंटरवल से ये जनरेट हो रहा है. ओके, चेक कर लीजिए, इंटरवल लाइक दिस एंड इंटरवल्स लाइक दिस. ठीक है, नाउ ये जो टोपोलॉजी इधर में डिफाइन किया हुआ है, सो द टोपोलॉजी डिफाइंड अबव इसमें आर का जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है, आर का जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है वो ये वाले टोपोलॉजी में कंटेंट होगा. सो ठीक है, तो द ये नीचे लिखना चाहिए मुझे, रुक जाइए. द यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर इज क्या होगा? दिस यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर इज कंटेन्ड इन इन द टोपोलॉजी डिफाइंड अबव. ठीक है, ये जो टोपोलॉजी इधर में डिफाइन किया हुआ है, इधर में लेट मी मार्क इट विथ रेड. ये जो टोपोलॉजी मार्क कर दे रहा हूं, तो नॉर्मली जो आर का जो टोपोलॉजी होता है वो इसमें कंटेंट होता है. ओके, एंड सो वी नो दैट हम लोग इधर से क्या कह पाएंगे कि ये अगर ये इसके अंदर ही आर का नॉर्मल टोपोलॉजी कंटेंट है, हेंस क्यू इज डेंस इन एक्स. हो गया सॉल्व, क्योंकि क्यू इज डेंस इन आर और आर का यूजुअल टोपोलॉजी इसके अंदर कंटेन्ड है. सो u is also dense in x and we got our answer. Okay, easy question. Next, एक सबस्पेस दिया हुआ है हमें. ओके, एक सबस्पेस दिया हुआ है. सो क्या दिया हुआ है? सबस्पेस फुल नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे लिख दे रहा हूं. z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 which can be written as z minus इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब चलिए देखते हैं इसे. R3 का ही है ये चीज, R3 का हो रहा है. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. अच्छा, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है तो आपको ये तो पता ही चल जा रहा है कि ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, पर इसका कोई अपर बाउंड नहीं है क्योंकि एक्स एंड वाई का भी कोई अपर बाउंड नहीं है. सो इसका भी कोई अपर बाउंड होगा नहीं, एंड हेंस वी कैन ऑब्वियसली से दैट इट इज क्लियरली अनबाउंडेड. अच्छा, अनबाउंडेड हो गया, बाउंडेड एंड क्लोज्ड होने से कॉम्पैक्ट होता है, राइट? पहले भी मैं बोल चुका हूं, इट नीड्स टू बी बाउंडेड एंड क्लोज्ड, पर ये तो भाई साहब अनबाउंडेड हो गया.
सो कॉम्पैक्ट तो बनेगा ही नहीं, नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है इसका पाथ कनेक्टेड, ठीक है। क्या ये कनेक्टेड हो सकता है? सो अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे, ये वाले फंक्शन को प्रॉपरली, सो दिस इज ऑब्वियसली graph of a continuous function, right? This is obviously a graph of a continuous function, and hence मैं इधर से क्या बता सकता हूँ कि hence it is connected. So unbounded implies not compact. इधर से तो मुझे मिल गया not compact, पर this is a graph of a continuous function, graph of a continuous function, and hence it is connected. Okay, so ये connected है. So not compact but connected. Okay, that's the solution for this one. And now we are going for the last question of the day. So good work, guys. You're keeping up with me. So now we can go to the last question of the day. That is question this one. X is a finite set. ठीक है, X कैसा set है? एक finite set है. And it has more than 5 elements. ठीक है, it has more than 5 elements. So let's suppose X is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, let us suppose X is this one. Now अगर हम लोग एक discrete topology assume कर लिए, ठीक है, हम लोग एक discrete topology consider कर लेते हैं. ठीक है, consider a discrete topology. Discrete topology. ओके, अगर हम लोग एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंसिडर कर लेते हैं, सो क्या नाम दे रहे हैं इसका? टाउ डी. डिस्क्रीट है, टाउ डी नाम रख रहे हैं. ओके, ऑन एक्स. ठीक है, नाउ देन एक्स डी, ये जो हम लोग को मिल रहा है एक्स कॉमा टाउ डी इज अ T1, T2 एंड T3 टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, ये जो हमें मिल रहा है, दिस इज अ T1, T2, T3 टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, आप लोगों को क्लियर है कि एक्स को हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, देन वी कैन कंसिडर अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी टाउ डी ऑन एक्स, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला सेट, दिस विल बी अ T1, T2, T3 टोपोलॉजिकल स्पेस. ठीक है, सो ये वाले से ऑब्वियसली तीन ऑप्शन ऑलरेडी कैंसल आउट बन जाएंगे. डिस्क्रीट, हाउसडॉर्फ, ये सब कुछ इधर से आ जा रहा है. ठीक है, सो हम लोग ये तीन ऑप्शन इधर से काट ले पाएंगे, and hence we are left with only one option, that is topology on X is T5. ठीक है, so more details ये वाले क्वेश्चन पे अगर आपको समझना है तो you should follow your class, but this is a easy questions and I hope you got every one of this question. Okay, चलो आज के लिए goodbye.